وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنیخیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ میں نے بھوپال کے کسی سیتلا مندر کا نام سن رکھا تھا کہ وہاں ایک بڑا تالاب ہے جس میں سونے کی نتھنیوں والی مچھلیاں تیرتی ہیں۔ اس کے سوا یہ شہر میرے لیے اجنبی تھا۔ اتنا مجھے ضرور معلوم تھا کہ اس شہر میں مسلمان بھاری اکثریت میں رہتے ہیں۔ میں نے ایک ٹیکسی والے کو سیتلا مندر چلنے کو کہا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور اپنے دوسرے ٹیکسی ڈرائیور ساتھی سے باتیں کر رہا تھا۔ میں وہاں سے فوراً فرار ہو جانا چاہتا تھا، کیونکہ اگر پولیس کی اتنی بھاری نفری مجھے گرفتار کرنے پلیٹ فارم پر موجود تھی تو پولیس اسٹیشن کے باہر بھی موجود ہوگی۔ ٹیکسی پارک اسٹیشن کے مین دروازے سے ایک طرف ہٹ کر میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو بڑے روب سے کہا، دیر کیوں کرتا ہے؟ ہماری پوجا پاٹ کا وقت ہو رہا ہے، ہمیں جلدی مندر پہنچنا ہے۔ ڈرائیور یقیناً کوئی مسلمان تھا، اس پر میری بات کا کوئی زیادہ اثر نہ ہوا۔ بس وہ خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھا اور انجن سٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ بھوپال شہر میں یہ سیتلا مندر کہاں پر ہے۔ ٹیکسی شہر کے ایک پرانے دروازے والی سڑک پر سے ہوتی ہوئی شہر کے گنجان علاقے سے گزرنے لگی۔ یہاں سے گزرنے کے بعد ایک اور دروازہ آیا۔ ٹیکسی اس دروازے سے دوبارہ شہر سے باہر آ گئی۔ پھر کئی ایک علاقوں سے گزرنے کے بعد ایک غیر آباد سڑک پر سے ہوتی ہوئی سیتلا مندر پہنچ گئی۔ سیتلا مندر ایک ٹیلے کے دامن میں پرانا سا مندر تھا۔ مندر کے مخروطی مینار کے اوپر زعفرانی رنگ کے 2-3 جھنڈے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ شردھالو لوگ مندر کے پرانے دروازے میں سے گزر کر اندر جا رہے تھے۔ میں بھی کچھ سادھو لوگوں کے پیچھے پیچھے مندر میں داخل ہو گیا۔ اندر ایک احاطہ تھا۔ سامنے مندر کا بڑا دروازہ تھا جس کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا پڑتا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ کوٹریاں بنی ہوئی تھیں۔ بالکل ویسا ہی ماحول تھا جیسا کہ میں اس سے پہلے مندروں کا ماحول دیکھ چکا تھا۔ میری اس وقت سب سے اہم ضرورت یہ تھی کہ کسی طرح میں اپنے سادھوؤں والا لباس تبدیل کروں، کیونکہ میری احمد آباد سے فرار ہوتے وقت یہی شناخت تھی اور پولیس اسی لباس میں مجھے پکڑ سکتی تھی، مگر مندر میں لباس تبدیل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ایک طرف درخت کے نیچے تھڑے پر بیٹھ گیا۔ میں نے درخت کی طرف منہ کر کے جیب سے بٹوا نکال کر پیسے گنے۔ میرے پاس 100 کے قریب روپے تھے۔ ان پیسوں میں بازار سے سلے سلائے نئے کپڑے خرید سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ذرا اندھیرا ہو تو میں شہر میں جا کر نئے کپڑے خرید کر پہن آؤں۔ اس مندر میں سوائے وقت گزارنے کے میرا اور کوئی کام نہیں تھا، اگرچہ وہاں یہ خطرہ ضرور تھا کہ کہیں پولیس میری تلاشی میں مندر میں چھاپے مارتی وہاں بھی نہ پہنچ جائے، لیکن یہ کوئی اتنی ایمرجنسی والی بات نہیں تھی۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، اس کے بعد اٹھ کر مندر کے عقب میں آ گیا۔ یہاں وہ تالاب تھا جس میں نتھنیوں والی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ جو توہم پرست ہندو لوگ منتیں مانتے تھے وہ بازار سے کوئی سنہری یا زرد رنگ کی مچھلی خرید کر اس کے نتھنوں میں سونے کی بالی ڈال کر اسے تالاب میں چھوڑ دیتے۔ تالاب کنارے عورتیں اور مرد کھڑے مچھلیوں کو دانہ ڈال رہے تھے۔ جب شام کا اندھیرا پھیل گیا تو میں اس خیال سے مندر کے بڑے دروازے کی طرف چل پڑا کہ شہر میں جا کر کسی دکان سے سلی سلائی قمیص پتلون خرید کر پہنتا ہوں تاکہ اس خطرناک حلیے سے نجات ملے۔ جیسے ہی میں مندر کے بڑے گیٹ کے قریب آیا، میں نے ایک پولیس کی گاڑی سڑک پر سے وہاں آ کر رکتی دیکھی۔ گاڑی کے رکتے ہی 3-4 پولیس کے سپاہی گاڑی میں سے چھلانگیں لگا کر باہر نکلے اور مندر کی طرف بڑھے۔ میں وہیں سے پلٹ گیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا مندر کے عقب میں آیا اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرنے لگا۔ ایک جگہ چھوٹا سا دروازہ بنا ہوا تھا جہاں ایک سادھو زمین پر بیٹھا سلفی کے لمبے لمبے کش لگا رہا تھا۔ مجھے یہ سوچنے کی فرصت نہیں تھی کہ یہ دروازہ کس طرف نکلتا ہے۔ میں جلدی جلدی چلتا دروازے سے نکل گیا۔ دوسری طرف مندر کے ٹیلے کی ڈھلان تھی۔ نیچے ایک گہری کھائی تھی جس میں پانی بہ رہا تھا۔ میں ڈھلان اتر کر کھائی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ یہ گندے پانی کا نالا نہیں تھا، یہ کوئی برساتی نالا تھا جس میں اس علاقے کا گندا پانی بھی گرتا تھا۔ نالے کے ساتھ چلتے چلتے میں ایک پلی کے پاس آ گیا۔ چڑھائی چڑھ کر میں پلی پر سے ہوتا ہوا شہر کی طرف جانے کی بجائے دوسری جانب جہاں بہت سے درختوں کے جھنڈ تھے مڑ گیا۔ میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ میں اس راستے پر پڑ گیا ہوں جو آگے جا کر بھوپال کے خطرناک جنگلوں میں نکل جاتا ہے، لیکن اس وقت مجھے کسی طرح اپنے آپ کو پولیس کی گرفت سے بچانا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور درختوں کے نیچے رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کچا راستہ تھا جو درختوں کے نیچے جھاڑیوں کے درمیان سے آگے جا رہا تھا۔ میرے لیے اس قسم کا ماحول کوئی اجنبی نہیں تھا۔ اس سے پہلے ہوشنگ آباد کے گھنے جنگلوں میں کمانڈو ٹریننگ کے دوران کافی وقت گزار چکا تھا۔ پھر بھی میں جنگل میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جنگل میں کچھ دور آگے جا کر مجھے کوئی ایسا محفوظ ٹھکانہ مل جائے جہاں میں رات گزار سکوں اور صبح کا اجالا ہوتے ہی یہاں سے دور کسی دوسری طرف نکل جاؤں۔ دن کی روشنی میں جنگل اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ ویسے بھی میں نہتا تھا، میرے پاس نہ تو کوئی پستول تھی اور نہ کوئی کمانڈو چاقو۔ اچانک مجھے طبلے ہارمونیم کی آواز آئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس جنگل میں طبلے ہارمونیم کون بجا رہا ہے۔ آواز کچھ فاصلے سے آ رہی تھی۔ اس وقت میں جھاڑیوں اور اونچی اونچی گھاس کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ ذرا آگے جا کر کچا راستہ ایک طرف مڑ گیا۔
मैंने कुछ फासले पर बिजली के बल्ब की रोशनी देखी। मैं इस ख्याल से रोशनी की तरफ चल पड़ा कि ये कोई गांव ही हो सकता है, जहां मुझे रात गुजारने के लिए कोई महफूज जगह मिल जाए। हारमोनियम और तबले की आवाज जहां रोशनी हो रही थी उसी तरफ से आ रही थी। फिर घुंघरुओं की आवाज भी आने लगी। लगता था वहां शादी ब्याह की कोई तकरीब है। मैं उस तरफ जाने वाले रास्ते से हटकर दूसरी तरफ से होकर उधर चलने लगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, तबले, हारमोनियम और घुंघरुओं की आवाज करीब आ रही थी। अब किसी औरत ने गाना शुरू कर दिया था। जरा करीब जाकर मैंने देखा कि एक मकान के आगे दरख्तों के दरमियान शामियाना लगा है और नीचे एक औरत जर्क बर्क लिबास में तबले की थाप पर रक्स कर रही है। कुछ लोग उसके इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में बैठ गए। मैं उन लोगों की मंडी से पीछे निकलकर कोई पनागाह तलाश करना चाहता था। ये छोटा सा गांव था। रात के अंधेरे में कुछ मकानों के खाके नजर आ रहे थे। इस किस्म के देहातों में जानवरों को बांधने के लिए बाड़े जरूर बने होते हैं। मैं इस किस्म की जगह की तलाश में था। जैसे ही मैं ब्याह शादी की तकरीब वाले मकान के नजदीक से गुजरा, एक आदमी अचानक किसी तरफ से निकलकर मेरे सामने आ गया और हाथ बांधकर बोला, महाराज, हमारे धन भाग के आप ऐसे महात्मा के दर्शन हुए। मैं अभी तक साधु जोगियों वाले हुलिये में ही था। मैं वहीं रुक गया। उस आदमी ने ऊंची आवाज में जिधर डांस हो रहा था उधर मुंह करके कहा, अरे गुर्दर लाल, देख महात्मा जी ने प्रदेश की है। अरे तेरा बेटा बड़ा होकर अफसर बनेगा, बड़ा अच्छा शुगुन हुआ करेगा, बड़ा अच्छा शुगुन हुआ है रे। गाने बजाने वाली मंडली से एक नौजवान जिसने हिंदुओं की तरह धोती बांध रखी थी दौड़ता आया। जहां हम खड़े थे वहां तंबू के नीचे लगे बड़े बल्ब की काफी रोशनी पड़ रही थी। नौजवान ने, जिसका नाम गुर्दर लाल था, आते ही मेरे कदमों को छुआ और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं कितना सौभागी हूँ कि आपने मेरे बच्चे के जन्मदिन पर दर्शन दिए। मुझे निराश न कीजिए, मुझे सेवा करने का मौका दें। कुछ और लोग भी आ गए जो उस नौजवान के दोस्त और रिश्तेदार लगते थे। उन्होंने मेरे पांव छुए और हाथ बांध कर खड़े हो गए। अब अगर मैं वहां से चला भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन लोगों ने मुझे देख लिया था। मैंने हाथ उठाकर कहा, हम जोगी सन्यासी लोग हैं, दुनियादारी के झमेलों से दूर ही रहते हैं, पर तुम लोग मजबूर करते हो तो चले चलते हैं। इस दौरान गाना बजाना बंद हो गया। वो लोग बड़ी इज्जत तौकीर के साथ मुझे लेकर गाने बजाने वाली महफिल में ले आए और एक तरफ जहां दरी पर सफेद चादर बिछी थी और 3 गांव तकिए रखे हुए थे वहां बिठा दिया। मालूम हुआ कि गांव के एक नौजवान गुर्दर लाल के यहाँ पहली औलाद एक लड़का पैदा हुआ था और इस खुशी में उसने शहर से एक गाने बजाने वाली को मुजरा करने के लिए बुला रखा था। महफिल में 15-20 आदमी ही बैठे थे। मुझे देखकर वो सब एहतराम से हाथ बांध कर खड़े हो गए। मैंने उन सब को तेज निगाहों से देखा। उनमें कोई भी आदमी मुझे अपने लिए खतरनाक दिखाई न दिया। मैं खामोशी से तकिए के साथ टिक लगाकर बैठ गया। गुर्दर लाल मेरे पांव दबाने लगा। गाने बजाने वाली अपनी जगह पर उसी तरह दरमियान में बैठी थी। एक हट्टे कट्टे मोटी तोंद वाले आदमी ने उठकर उसका बाजू पकड़ा और कहा, अरे जाकर गुरु जी के चरण छू। मैंने महसूस किया कि तवाइफ मजबूरन उठी और पांव में बंधे हुए घुंघरू की झनकार मेरे करीब आई। झुककर उसने मेरे कदमों को बड़ी बेदिली से हाथ लगाया और दूसरी तरफ मुंह मोड़कर वापस चली गई। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि हिंदू औरतें और खास तौर पर हिंदू तवाइफ औरतें जोगी सन्यासियों का बड़ा एहतराम करती हैं। ये बात हिंदुस्तान में इतनी देर से रहते कई बार मेरे मुशाहिदे में आ चुकी थी, मगर उस तवाइफ ने साधु जोगी को देखकर किसी किस्म की अकीदतमंदी और गर्मजोशी का इजहार न किया। इस दौरान मैं तवाइफ का भरपूर जायजा ले चुका था। उसकी उम्र 24-25 साल की होगी। रंग गोरा था, नक्श तीखे और आंखें खास तौर पर खूबसूरत थीं। उसने बड़ी कीमती नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी जिस पर चांदी के तारों से बने हुए फूल बल्ब की रोशनी में सितारों की तरह लग रहे थे। उसने सोने का जेवर भी काफी पहना हुआ था। जिस मोटे आदमी ने उसे मेरी तरफ भेजा था वो खुद भी मेरे करीब आया, मेरे कदमों को छुआ और हाथ बांध कर बोला, महाराज, गोरी बाई बड़ी जिद्दी है, इसको माफ कर दीजिए, हम तो आपके सेवक हैं। गोरी बाई उस नौजवान तवाइफ का नाम था। मैंने हाथ उठाकर आशीर्वाद देने के अंदाज में कहा, कोई बात नहीं बच्चा, जोगी सन्यासी किसी से नाराज नहीं हुआ करते। तवाइफ ने मुजरा शुरू कर दिया। वो कोई ठुमरी गा रही थी। मेरी ठुमरी की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं थी। मैं सोच रहा था कि इन लोगों के यहाँ रात गुजारी जा सकती है। ये सारे बेजरर से आदमी लग रहे थे। इतने में उन्होंने मेरे सामने पूरियों, कचोरियों और मिठाइयों से भरा हुआ थाल और पानी का जग लाकर रख दिया। ये मुसलमानों वाली खुराक नहीं थी। हम मुसलमान पुलाव, चावल, रोटी और गोश्त वाला सालन खाने के आदी हैं, मगर इतनी देर से हिंदुओं के मुल्क में रहते रहते मुझे इस किस्म के खानों की आदत हो गई थी। मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने शेर होकर पूरियां, कचोरियां खाईं। गुर्दर लाल ने बड़ी अकीदत से मुझे उम्दा किस्म का सिगरेट पेश किया। मैंने सिगरेट भी ले लिया। जोगी सन्यासी हिंदुस्तान में सिगरेट वगैरह आम पी लिया करते हैं। वो तो सबके सामने सुल्फी के लंबे लंबे कश लगाते हैं। मैं मजे से सिगरेट पी रहा था और अब तवाइफ के गाने की तरफ भी ध्यान था। ठुमरी गाते हुए वो साथ उठकर रक्स भी करने लगती। लोग उस पर पैसे और नोट लुटा रहे थे जिन्हें वो मोटा आदमी जो तवाइफ का मालिक था जल्दी जल्दी उठाकर एक थैली में डालता था। इतने में वहाँ एक अजीब वाकया हुआ। तवाइफ गाते गाते एक आदमी के हाथ से रुपए का नोट लेने उसके पास गई।
उस आदमी ने तवाइफ की चुटकी ली। तवाइफ ने हाय अल्लाह कहकर उसका हाथ झटक दिया। उसके मालिक मोटे आदमी ने गुस्से के साथ कहा, हाय अल्लाह क्यों कहती है, हाय राम कहा कर। तवाइफ ने भी गुस्से में जवाब दिया, नहीं कहूंगी हाय राम। मोटे आदमी ने उठकर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। तवाइफ रोने लगी और बेख्तियार होकर हाथ ऊपर उठाकर बोली, मुझे इन जालिमों से बचा ले खुदा। मोटे आदमी ने तवाइफ को बाजू से पकड़कर जोर से धक्का दिया और गाली देकर कहा, बक बक बंद करो और नाच दिखा, चल नाच। वो ताली बजाने लगा और तबले वाले की तरफ देखकर बोला, चलो उस्ताद जी तुम क्यों ढीले पड़ गए हो। तबला जोर जोर से बजने लगा, हारमोनियम की लय भी तेज हो गई। तवाइफ ने भी नाचना शुरू कर दिया, मगर उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे। साफ मालूम हो रहा था कि वो बादल नखास्ता नाच रही है। मैं उसकी तरफ अब बड़े गौर से देख रहा था। ये हकीकत वाज़े हो गई थी कि ये तवाइफ मुसलमान थी और इसे जबरदस्ती नचवाया जा रहा है। चूंकि मैं भी मुसलमान था इसलिए कुदरती तौर पर मुझे उससे हमदर्दी पैदा हो गई, मगर मैं उसकी कोई खास मदद नहीं कर सकता था। मैं खुद अपने हालात में उलझा हुआ था। फिर भी मैंने सोचा कि इस औरत का पता करना चाहिए कि अगर ये मुसलमान है और तवाइफ नहीं तो इस पेशे में कैसे आ गई। आधी रात तक मुजरा जारी रहा। जब मुजरा खत्म हो गया तो मेरे अकीदतमंद मेजबान गुरधर लाल ने हाथ बांध कर कहा, महाराज अगर रात यहाँ बसर करना चाहते हैं तो ये हमारे बड़े भाग होंगे। आपके लिए मैंने चौबारे में बिस्तर लगवा दिया है। मैंने गुरधर लाल से पूछा, ये गाने वाली यहीं रहेगी या वापस शहर चली जाएगी। गुरधर लाल ने हाथ बांध रखे थे। बोला, महाराज आपकी इच्छा हो तो आप हुक्म करें, वो रात यहीं रह लेगी। ये लोग मेरे गुलाम हैं, अगर इन्हें वापस जाना भी हुआ तो नहीं जाएंगे। मैंने महात्मा लोगों की तरफ हाथ उठाकर कहा, गुरधर लाल हमें इस नर्तकी औरत में आकाश की नर्तकियों का रूप नजर आता है। हम इसे कुछ उपदेश देना चाहते हैं। इसे थोड़ी देर के लिए हमारे पास भेज देना। हम तेरे पुत्र के वास्ते भगवान शिव से खास प्रार्थना करेंगे। गुरधर लाल अपने बेटे के हक में भगवान शिव के आगे प्रार्थना का सुनकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, महाराज आप अपने कमरे में पधारें, मैं नर्तकी को लेकर आपके पास आता हूँ। उसने मुझे अपने मुलाजिम के साथ कर दिया। गुरधर लाल का चौबारा गांव में पक्का चौबारा था। ऊपर वाली मंजिल में एक छोटे से कमरे में मेरे लिए बिस्तर लगवा दिया गया था। मैं बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि सुबह होने से पहले पहले मुझे यहाँ से निकल जाना है और जाहिर है मेरी मंजिल दिल्ली तक, मगर ट्रेन का रास्ता अब मेरे लिए महफूज नहीं रहा था। मैंने भी फैसला कर लिया था कि गुरधर लाल के ताउन से मैं किसी ट्रक वगैरह में बैठकर आगे ग्वालियर आगरा तक जाने की कोशिश करूंगा। इतने में गुरधर लाल तवाइफ को लेकर आ गया। तवाइफ के खूबसूरत चेहरे पर सख्त नाराजगी के आसार थे। कमरे में बल्ब जल रहा था। जिस चारपाई के बिस्तर पर मैं नींद दराज था उसके पास ही लोहे की 2 कुर्सियां और छोटी सी तपाई रखी थी। गुरधर लाल हाथ बांध कर बोला, महाराज आपकी दासी हाजिर है। इतना कहकर वो कमरे से निकल गया। तवाइफ वहीं दरवाजे के पास खड़ी मुझे नफरत अंगेज आंखों से देखती रही। मुझे इस किस्म की कोई लालच नहीं थी। मैं तो सिर्फ उससे ये दरियाफ्त करना चाहता था कि अगर वो मुसलमान औरत है और इस पेशे को पसंद भी नहीं करती तो फिर वो इन कंजर किस्म के लोगों के साथ क्यों रह रही है। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। तवाइफ वहीं खड़ी रही। जब मैंने उसे जबान से कहा कि बैठ जाओ नर्तकी, तो वो गुस्से में आकर बोली, तुम महात्मा होगे अपने घर पर या इन हिंदुओं के लिए होगे। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। मुझे मालूम है तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है, लेकिन याद रखो मैं मुसलमान हूँ, सिवाय खुदा की जात के और किसी से नहीं डरती। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। तवाइफ का उर्दू बोलने का लहजा पंजाबी था। साफ लग रहा था कि वो पंजाबी लड़की है, मगर सवाल ये पैदा होता था कि एक मुसलमान पंजाबी लड़की या तवाइफ इन लोगों के पास इतनी दूर कैसे आ गई, क्योंकि मशरकी पंजाब में तो हिंदुस्तान की तकसीम के बाद एक भी पंजाबी खानदान नहीं रहा। या तो वो लोग काफिलों की शक्ल में सारे के सारे पाकिस्तान की जानिब हिजरत कर गए थे, या सिखों हिंदुओं ने उन्हें उनके घरों या खेतों या रेलवे स्टेशनों पर बाल बच्चों समेत शहीद कर दिया था। मैंने तवाइफ की तरफ हाथ उठाकर कहा, नर्तकी हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उसने दुरुस्त लहजे में कहा, तो फिर मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है। वो जाने लगी तो मैंने उसे आवाज देकर कहा, ठहरो, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मैंने तुम्हें इस गुनाह की दलदल से निकालने के लिए बुलाया है तो क्या तुम मेरे साथ चली चलोगी। तवाइफ लड़की ने पलट कर मेरी तरफ देखा और नफरत से कहा, तुम हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ, तुम मुझे यहाँ से क्यों निकालोगे। ऐसा फरेब मैं पहले कई बार खा चुकी हूँ, लेकिन गुनाह की एक दलदल से निकलकर दूसरी दलदल में गिरा दी गई। मैंने उसे अपने रवैये को मुशफ़िकाना बनाते हुए मजीद नर्म लहजे में कहा, गोरी बाई, मैं तुम्हें इस गंदी नाली से इसलिए निकालना चाहता हूँ कि जब मोटे हिंदू दलाल ने तुम्हें मारा था तो तुमने आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मुझे इस जहन्नम की जिंदगी से बचा ले। तवाइफ लड़की ने तंज से कहा, तुम्हें आखिर मुझसे क्या हमदर्दी है महात्मा जी, क्या मैं तुम्हारी खाला लगती हूँ, क्या तुम मुसलमान हो। मैंने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, नर्तकी, अगर फर्ज कर लो कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान होने के नाते तुम्हें काफिरों के चुंगल से आजाद कराना चाहता हूँ, तो क्या फिर भी तुम मुझ पर एतबार नहीं करोगी। वो लड़की मेरे पास आई और चारपाई पर बैठ गई। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तुम मुसलमान हो तो तुमने ये हिंदू साधुओं वाला ढोंग क्यों रचा रखा है।
इसकी भी कोई वजह हो सकती है, तुम्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। वो बोली, अगर तुम मुसलमान हो तो कलमा शरीफ पढ़कर सुनाओ। असल में जिस वक्त मुझे मालूम हुआ था कि ये लड़की मुसलमान है और न जाने क्यों अजियतनाक हालात की वजह से इसे हिंदुओं ने पकड़कर इस धंधे में डाल दिया है, उसी वक्त मेरे दिल ने फैसला कर लिया था कि इसे काफिरों के जाल से निकालकर हिंदुस्तान के किसी शहर के मुसलमानों के रिफाई इदारे के हवाले कर दूं। मैंने उसे कलमा शरीफ पढ़कर सुनाया तो उसने सर झुका लिया और बड़े टूटे दिल के साथ बोली, मगर कलमा शरीफ तो एक हिंदू भी याद कर सकता है। एक काफिर ने मुझे इसी तरह धोखा दिया था। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें इन जालिम काफिरों से निजात दिलाना चाहता हूँ। मुझे बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और वो क्या हालात थे जिन्होंने तुम्हें गुनाह के इस मकाम तक पहुंचाया। चूंकि मेरी नीयत खराब नहीं थी, इसलिए मैंने दरवाजे को अंदर से चटखनी नहीं लगाई थी। तवाइफ लड़की आंचल से आंसू पूंछ कर अपनी दास्ताने हयात शुरू करने वाली थी कि दरवाजा धड़ाक से खुला और उसका मोटा हिंदू एजेंट इस हालत में अंदर आ गया कि उसके हाथ में खंजर था और चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने अंदर आते ही दरवाजे को अपने कंधे से बंद किया और मुझे गाली देकर बोला, ओ ढोंगी महात्मा, तू हमारी औरत को यहाँ से भगा कर ले जाना चाहता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझ पर खंजर से हमला कर दिया। ये उस मोटे हिंदू की सख्त गलती थी और बदकिस्मती कि उसने मुझ पर खंजर से वार कर दिया। अगर उसे मालूम होता कि उसने जिस आदमी पर वार किया है वो एक तरबियत याफ्ता आदमी है तो यकीन है कि वो ये जुर्रत कभी ना करता। लेकिन जब किसी की मौत आई हो तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है। अगर वो मेरे बाजू या टांगों पर खंजर का वार करता तो भी मैं उसे कुछ न कहता, बस सिर्फ उसे किसी तरह बेहोश करके वहीं डाल देता। लेकिन उसने खंजर का वार सीधा मेरी गर्दन पर किया और मेरी गर्दन काटने की कोशिश की। वो मोटा ताजा हट्टा कट्टा था। अगर मुझसे जरा सी भी गफलत हो जाती तो एक बार उसने मेरी गर्दन में खंजर उतार दिया था। लेकिन याद रखें, एक तरबियत याफ्ता कमांडो सोते हुए भी गाफिल नहीं होता। जैसे ही उसका खंजर वाला हाथ मेरी गर्दन के पास आया और वो मुझ पर गिरा, मैंने एक सेकंड भी जाया न किया और उसके खंजर वाले बाजू को नीचे से हाथ मारकर ऊपर को उछाला और अपने दाएं बाजू को कोहनी तक उसके हल्क के ऊपर रखकर इतनी जोर से नीचे को झटका दिया कि उसका नरखरा उसकी गर्दन के पीछे रीढ़ की हड्डी के जोड़ों में जाकर फंस गया। ये ऐसा कारी वार था कि उसे कोई भैंसा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली। मैंने कभी किसी इंसान के मुंह से पहले ऐसी आवाज नहीं सुनी थी और वो पिछाड़ खाकर वहीं चारपाई के पास फर्श पर बेजान होकर गिर गया। तवाइफ लड़की तड़प कर एक तरफ खड़ी हो गई और अब सहमी हुई और दहशतज़दा नजरों से कभी मुझे और कभी फर्श पर पड़ी हुई अपने हिंदू दलाल की लाश को देख रही थी। अब मेरा और उस मुसलमान तवाइफ लड़की दोनों का वहां ठहरना फांसी के फंदे को अपने गले में डालने के बराबर था। फिर भी मैं उस लड़की की मर्जी मालूम करना चाहता था। मैंने चारपाई से उठते हुए कहा, मैं यहाँ से फरार हो रहा हूँ, क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो? तवाइफ लड़की मेरी बहादुरी से बेहद मुतासिर हुई थी। कहने लगी, अगर तुम सचमुच मुसलमान हो तो मुझे यहाँ छोड़ कर न जाओ। ये लोग इसकी लाश को देखकर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस मोटे दलाल का नाम जगदयाल था। उस कमरे में एक खिड़की थी जो बंद थी। मैंने उसे खोल कर नीचे देखा। बाहर तंग सी गली में अंधेरा छाया हुआ था। दलाल की मौत उसे अकेला ही वहां ले आई थी। मैंने चारपाई पर बिछी हुई नीले रंग की खद्दर की चादर को उठाते हुए कहा, जल्दी से अपनी चमकीली साड़ी उतार कर ये चादर लपेट लो। इस साड़ी की चमक लोग अंधेरे में भी देख लेंगे। मैंने चादर लड़की के कंधे पर फेंक कर दरवाजा जरा सा खोल कर बाहर देखा। उस कमरे के आगे कोई 2-3 फुट की गैलरी थी जो आगे सीढ़ियों के दरवाजे तक जाती थी। ये सीढ़ियां नीचे पहली मंजिल की ड्योढ़ी में उतरती थी। ये तवाइफ लड़की जब गुर्दर लाल के साथ मुझे मुलाकात करने आई थी तो उसे मालूम था कि वो एक बदकिरदार जोगी के पास रात गुजारने जा रही है। चुनाचे वो सिवाय कानों के, सोने के कांटों के बाकी सारा जेवर उतार कर आई थी। गुर्दर लाल ने न जाने क्यों तवाइफ लड़की के दलाल जग्गू को एतमाद में नहीं लिया था। हो सकता है उसे यकीन हो गया हो कि जग्गू लड़की को मेरे पास अकेले भेजने पर तैयार नहीं होगा और अगर तैयार होगा तो भारी रकम लेगा। दलाल की मौत उसे खींच कर ले आई थी। मैंने दरवाजा बंद करके पलट कर देखा। कमरे में जलते बिजली के बल्ब की रोशनी में तवाइफ लड़की मुंह दीवार की तरफ किए साड़ी उतार रही थी। मैंने तेज लहजे में कहा, जल्दी करो, देर क्यों कर रही हो? कोई आ गया तो तुम यहीं रह जाओगी। लड़की ने साड़ी उतार कर कोने में फेंकी। उसने नीले रंग का लहंगा बांध रखा था। उसी रंग की ऊपर शमीज थी। वो जल्दी से चादर अपने जिस्म के गिर्द लपेट कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने उसके बाजू को मजबूत गिरफ्त में लेते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ जंगल में दौड़ सकती हो? लड़की ने कहा, मैं इस जहन्नम से निकलने के लिए 7वीं मंजिल से भी कूद सकती हूँ। हम जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर छोटी सी गली में आ गए। जहाँ से मैं जंगल की तरफ रुख करने लगा तो लड़की ने कहा, उधर क्यों जाते हो, इस तरफ आओ। वो इस शहर भोपाल से अच्छी तरह वाकिफ थी।
मैं उसके पीछे हो गया। फिर उसके आगे आकर कहा, इधर तो शहर है। शहर की जानिब जाते हुए मुझे अपना खतरा लगा हुआ था कि कहीं मैं पुलिस के हत्थे न चढ़ जाऊं। हम शहर में नहीं जाएंगे, कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करो जो हमें भोपाल से बाहर निकाल कर ले जाए। मैं दिल्ली की तरफ जाना चाहता हूँ। वो मुझसे एक कदम आगे चल रही थी। कहने लगी, पहले भोपाल से तो निकले महात्मा जी। मैंने उसे कहा, क्या तुम स्टेशन पर जाना चाहती हो? वो बोली, तुम देखते चलो, फिक्र न करो, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी। मैंने कहा, मैं पुलिस से नहीं डरता, मैं तो सिर्फ तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ। लड़की ने मेरा हाथ पकड़ कर दबाया। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ महाराज। पता नहीं तुम्हें शुक्रगुजार के मानी भी आते हैं या नहीं। मैं खामोश रहा। हम शहर की एक बाहर की आबादी के करीब से होकर गुजर रहे थे, जहाँ अंधेरा था। एक तरफ मकान थे, दूसरी तरफ अंधेरे में दूर तक खेत ही खेत या घास का मैदान था। रात होने की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा था। हमने एक जगह छोटा सा कोई पुल उबूर किया। दूसरी जानिब मकान शुरू हो जाते थे, जिस पर अंधेरा छाया हुआ था। कहीं कहीं रोशनी नजर आ जाती। हम एक छोटे से बाजार में आ गए। कोई देहाती बाजार लगता था, जहाँ अंधेरा था। लड़की ने मुझे एक जगह खड़ा किया और खुद एक तंग गली में चली गई। मैं सोचने लगा, ये कहाँ गई होगी। कोई 5 मिनट के बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में एक छोटा सा अटैची केस था। कहने लगी, मैं घर से कुछ कपड़े और पैसे ले आई हूँ। मालूम हुआ उसका मकान उसी गली में था। अब हम शहर के बाहर से गुजरने वाली सड़क पर आ गए, जहाँ एक सिनेमा घर था, जिसके बाहर रोशनी में जो फिल्म चल रही थी उसके बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे। एक जानिब कुछ खाली रिक्शे और टैक्सियां खड़ी थी। सिनेमा हाउस में सेकंड शो चल रहा था। लड़की ने आगे बढ़कर एक खाली रिक्शा लिया। ये मोटर रिक्शा था। रिक्शा मेरे करीब लाकर बोली, महाराज आ जाएं। मैं रिक्शे में उसके साथ बैठ गया। रिक्शा भोपाल के मुख्तलिफ बाजारों में से गुजरने लगा। कुछ देर के बाद हमारे सामने भोपाल का रेलवे स्टेशन था। मैं जल्दी से नीचे उतर आया। लड़की ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और हम स्टेशन की इमारत की तरफ बढ़ने लगे। अब मुझे ये फिक्र लगी थी कि कहीं कोई पुलिस वाला पहचान न ले, लेकिन खैरियत गुजरी। हम टिकट वाली खिड़की के पास आ गए। लड़की ने आगरा के 2 टिकट लिए और मुझे साथ लेकर प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ी। मैंने उससे पूछा, गाड़ी कब जाएगी? उसकी कलाई पर जनाना घड़ी बंदी थी। उसने घड़ी पर निगाह डालकर कहा, बस 15 मिनट में यहाँ से निकल जाएगी। ये गाड़ी पीछे बम्बई से आ रही है। जब वो मुझे साथ लेकर गुरदरलाल के मकान से निकली थी तो उसे मालूम था कि एक गाड़ी रात के 10:15 बजे के करीब भोपाल से दिल्ली की तरफ जाती है। मैं जोगियों वाले हुलिये में था। लड़की ने नीली चादर बदन के गिर्द लपेट रखी थी। चादर जरा सी एक तरफ हटी तो मैंने देखा कि उसके नीचे उसी रंग की सूती साड़ी थी। घर में उसने चादर के नीचे उसी रंग की आम सी साड़ी पहन ली थी। हम प्लेटफॉर्म पर आकर काफी आगे जाकर रेलवे के पड़े हुए सामान की ओट में बैठ गए। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें आगरा पहुंचाकर वहां से आगे दिल्ली चला जाऊंगा। उसने नीली चादर से सर ढांप रखा था। मौसम रात को सर्द हो जाता। ऊपर दिल्ली आगरा के इलाके से सर्दी शुरू हो जाती थी। उसका गोरा चेहरा चादर के दरमियान से चांदी की तरह चमक रहा था। लड़की कहने लगी, ठीक है, मगर तुम मुझे मेरे घर पहुंचाकर वापस जाओगे। मैंने कहा, क्या आगरा में तुम्हारा घर भी है? उसने कहा, नहीं, आगरा से थोड़ी दूर एक जगह टिंटला है, वहाँ मेरी एक जिगरी सहेली रहती है। वो मुसलमान है। मैं उसके पास कुछ दिन ठहरूंगी, फिर जहाँ किस्मत ले जाएगी चली जाऊंगी। वो मुझे गौर से देख रही थी। मैंने पूछा, क्या देख रही हो नर्तकी? वो बोली, अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम मुसलमान हो। जिस बहादुरी से तुमने जग्गू को हलाक किया है वो एक मुसलमान ही कर सकता है। लेकिन महाराज, तुमने ये हिंदू जोगियों वाला हुलिया किस लिए बना रखा है? क्या तुम लोगों को फरेब देते हो जिस तरह दूसरे साधु क्या करते हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता। ये हुलिया महज शौक की खातिर बनाया है, मैं इसे नहीं मानती। वो बोली, तुम जरूर कोई पुरस्कार आदमी हो, मुझे नहीं बताओगे? मैंने आहिस्ता से कहा, अगर मौका मिला तो जरूर बताऊंगा। मैंने जो साधुओं वाले कपड़े पहन रखे थे उसकी तरफ से मुझे खतरा लगा हुआ था, कहीं पुलिस का कोई सिपाही मुझे पहचान न ले। मैंने लड़की से कहा, तुम ऐसा करो, अपनी नीली चादर मुझे दे दो, तुमने तो साड़ी पहन रखी है। लड़की ने चादर मुझे दे दी। मैंने चादर को इस तरह लपेट लिया कि मेरे गेरुए रंग का जोगियों वाले कपड़े कम दिखाई दिए। इतने में ट्रेन आ गई। हम एक डिब्बे में बैठ गए। डिब्बे में मर्द औरतें इकट्ठे बैठे थे। ये 3rd क्लास का डिब्बा था। भोपाल से आगरा का सफर काफी तवील सफर है। लड़की ने ऊपर बर्थ पर सोने के लिए जगह बना ली और ऊपर चढ़कर लेट गई। मैं चादर की बुक्कल मारे सीट पर ही बैठा रहा। मैं नींद पर काबू पा सकता था। सारी रात गाड़ी चलती रही। मैं जब जी चाहता बैठे बैठे सो जाता, जब जरूरत महसूस होती जाग जाता। झांसी का स्टेशन दूसरे दिन आया। हम दोनों स्टेशन पर बिल्कुल न उतरे, डिब्बे में ही बैठे रहे। लड़की जिसको दलाल जग्गू गोरीबाई के नाम से पुकारता था, उसका असली नाम मुझे अभी तक मालूम नहीं था। झांसी के बाद ग्वालियर आया और फिर दूसरे दिन रात को ट्रेन आगरा पहुंच गई। स्टेशन से हम मुंह सर लपेट कर निकल गए। लड़की ने स्टेशन के बाहर आकर कहा, टुंडला जाने वाली ट्रेन रात को नहीं मिलेगी, हम लारी अड्डे पर चलते हैं। वहां से टुंडला के लिए लारियां आधी रात तक चलती हैं। वो आगरा शहर से भी बखूबी वाकिफ थी। बाद में मालूम हुआ कि वो इस शहर के बाजार हुस्न में भी रह चुकी थी। हमें एक टैक्सी मिल गई जिसने हमें लारी अड्डे तक पहुंचा दिया। आगरा में सर्दी थी। मैंने चादर लड़की को देनी चाहिए।
उसने न ली और कहा, मेरे पास इटैची केस में एक गर्म चादर है। और उसने इटैची केस खोलकर निस्वारी रंग की गर्म चादर निकालकर ओढ़ ली। लारी अड्डे से हमें आसानी से टुंडला जाने वाली बस मिल गई थी। हम उस बस में सवार हो गए और बस टुंडला की तरफ चल पड़ी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।